Good morning, students. Today we will start with a new poem. The name of the poem is From the Passing of Arthur. It is written by Alfred Lord Tennyson. The poet of this poem is Lord Alfred Tennyson. He was a very famous poet of the Victorian age. So let us see something or let us know something about this famous poet. Lord Alfred Tennyson was born at Sombray in August 6, 1809. So it was quite a long time that this poet was born. His father's name was George Tennyson. His father was also a well-known poet of his time. So both father and son were a famous poet during the Victorian age. He was educated at Trinity College, Cambridge. There he became an intimate friend of Arthur Henry Hallam. So he wrote his famous elegy in memory after the death of his friend. So he wrote many poems. One of his famous elegy is about his friend Alan. It was published in 1850. He was appointed poet laureate in the place of Wordsworth after his death. So he was also appointed as the poet laureate. Laureate means a learned person who are named. He was also awarded the Chancellor's Medal in 1829 for his famous poem Timbuktu. Tennyson was one of the famous poets of the Victorian age because when he was writing the poem, that era was of the Victorian time. That is, Queen Victoria ruled during that time. He was praised by all because he used to write very nice, good poems, and therefore he was praised by all. He also got chance to become a personal friend of Queen Victoria. As I already told you, the era was the Victorian age because Queen Victoria was the Queen of England at that time. So he became a friend of Queen Victoria, who made him a peer in 1884. He wrote so many poetic collections. These are the works about Lord Tennyson, all the poems he wrote. They are the Princess, Edlies of King and Maud. His noble poems are Break, 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 Ideal Tears, Ulysses, Crossing the Bath, and the Charge of the Light Brigade. These are his famous poems. Ulysses and Charge of the Light Brigade are very famous poems. When he died in 1892, he was buried in Westminster Abbey. Now let us see what this poem has to convey to us. What is the poem all about? In this poem, King Arthur gives last message to his followers. That means
Now there was a war, and after the war, King Arthur, who was ruling at that time, he lost the war and now he wants to go somewhere and live all by himself. So he gave a last message to his followers, that is Sir Bedivere. Now this King Arthur took his 3 wives or queen along with him and went to some unknown island. His knight, Sir Bedivere, change is the law of nature. So when he was leaving the country, Sir Bedivere, जो उनके प्रधानमंत्री थे, वे बहुत दुखी हो गए और पूछने लगे, आप हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? आपको नहीं जाना चाहिए। तो King Arthur said that change is the law of nature. बदलाव ही नैसर्गिक रीजन है और हमें इस सृष्टि में हर समय हम बदलाव देखते हैं, जैसे मौसम का बदलाव, समय का बदलाव, टेम्परेचर का बदलाव, महीनों का बदलाव। उसी तरह से हमें चेंज लाना है। अगर मैं यहाँ निरंतर रहूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले और कोई आ जाए और मेरी जगह, मेरा स्थान वो ले ले, ताकि उसके विचार मेरे विचार अलग ही होंगे और ऐसे वो कुछ चेंजेस ला सकता है। यही संदेश उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सर बेडिवियर को दिए, क्योंकि सर बेडिवियर बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके राजा उन्हें छोड़ करके जा रहे थे। सो इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो राजा ने क्या कहा? बदलाव ही दुनिया का नियम है और हमें बदलाव लाते रहना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ और जो कोई दूसरा आएगा वो कुछ नए बदलाव के साथ आप पर राज करेगा। इवन गुड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस मस्ट चेंज। तो उन्होंने कहा कि चाहे रूल्स कितने भी अच्छे हो, पर ये बहुत दिनों तक अगर एक जैसा रहे तो वो लोगों को पसंद नहीं आता। ज्यादातर लोग आप देखते हो कि अगर एक ही जगह पे कोई काम कर रहा हो तो उसके मन में बहुत सारी आशाएं आ जाती हैं, लालच आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं तो 20 साल से एक जगह में काम कर रहा हूँ, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है, और इस तरह से वो गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। सो राजा यहाँ कहते हैं कस्टम्स ऑफ प्रैक्टिस भले ही अच्छे हो, पर उसमें भी बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव होगा, नई चीजें आएंगी, तभी हम लोग को अच्छा भी लगेगा। ये कहते हुए राजा जाने लगते हैं। इफ दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टर्न इनटू इविल। तो राजा का कहना था अच्छी बातें भी अगर बहुत देर तक चलती रहे तो लोगों के मन में बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं। वे सोचते हैं चलो हमें देखने वाला तो कोई नहीं है, हम 20 साल से एक जगह हैं, थोड़ा सा गलत बात भी वे कर लेते हैं। मान लो किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां कुछ गलत काम वे करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। We need not to be perturbated by changes. तो ऐसे चेंज से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसे नेचर बदलते रहता है, उसी तरह से हमें भी बदलाव लाना चाहिए अपने कामों में, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने ढंग में।
So we should continue to perform our duties under all circumstances. तो राजा कहते हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमें अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए, हमें हर हाल में अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। We should pray to God to shower his blessings. किंग आर्थर कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि सारा काम जो होता है वो भगवान के ही इशारे पे होता है। तो हमेशा हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। We should pray to God to shower his blessing. वो अपनी आशीर्वाद हम पे बनाए रखे, इसीलिए हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रेयर इज द मैजिकल पावर। राजा कहते हैं प्रेयर में, प्रार्थना में बहुत क्षमता होती है, बहुत पावर होता है। जब आप किसी कठिन समय में हो तो आप भगवान की शरण में जाते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमें इस कठिन समय से बाहर निकाले, और आप देखते हो कि सचमुच भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपको बाहर, उस कठिन समय से बाहर निकालते हैं। It can accomplish impossible things. So, अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें कठिन से कठिन समय पर भी उन चीजों से बाहर निकलने में भगवान हमारी मदद करते हैं। Therefore, we should pray to God not only for himself but also for our friends. So, यहाँ पर आर्थर कहते हैं कि केवल हम अपने लिए ही न प्रेयर करें, अपितु दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए, उनके लिए भी हमें प्रेयर करना चाहिए। It is kind of affection that binds us with God. प्रार्थना करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उतने ही हम भगवान से हमारी लगाव बढ़ता जाएगा। तो यही इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किंग आर्थर अपने सेनापति सर बेडिवियर्स को समझाते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। So let us start. And slowly answered Arthur from the barge. The old order changed, yielding place to new. इन दो लाइन का अर्थ है, और धीरे धीरे किंग आर्थर जो लड़ाई से लौटे थे, अब उसमें हार गए थे और वो जाना चाहते हैं किसी दूर देश में अकेले रहने के लिए। तो एक नाव पे सवार हो गए और उस समय उन्होंने अपनी सेनापति सर बेडिवियर को कहने लगे कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तभी तो चेंज आएगा, और चेंज क्या है? इट इज द लॉ ऑफ द नेचर। और जब चेंज होगा तब नई चीजें आएंगी, और वो नई चीजों को हम देख करके कुछ सीखेंगे। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। अब इन दो लाइन का मीनिंग क्या है? वो कहते हैं कि अगर चेंज नहीं होगा और एक ही चीज, एक ही कस्टम अगर निरंतर चलता रहे, भले ही वो कस्टम बहुत अच्छा हो, वो प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, वो बातें बहुत अच्छी हो, पर फिर भी अगर सालों से वही चीज चलता रहे तो हमारे दिल में
बुरी बातें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे करप्शन या किसी के बारे में द्वेष भावना हमारे दिल में आ सकता है। सो उनका कहना है कि चेंज के लिए मैं ये जगह छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे बदले जो आएगा वो तुम्हें नई बातें सिखाएगा। Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life and that which I have done. तो कहते हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरे सारी इच्छाएं पूरे हो चुके हैं, मैं बहुत आरामदायक जीवन बिताया हूँ और अब मैं ये जीवन छोड़ करके जाना चाहता हूँ। I have lived my life. मैं अपनी पूरी जीवन बिता चुका हूँ, मुझे जिस तरह से रहना था मैं रह चुका हूँ, अब मैं ये अपना जीवन छोड़ करके जा रहा हूँ। And that which I have done, may he within himself make pure but thou. So मैंने अपने जीवन में कोई भी बुरे काम नहीं किए हैं और जो भी किए हैं लोगों के भलाई के लिए किए हैं, और ऐसा ही सोच करके मैं ये अपना राजपाट छोड़ करके मैं अब जा रहा हूँ। If thou shouldst never see my face again, वो सर बेडिवियर को कहते हैं, यहाँ दाव मतलब यू होता है, विक्टोरियन एज में यू नहीं बोला जाता था, उसके बदले में दाव बोला जाता था। So if thou shouldst never see my face, तो राजा कहते हैं अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, मेरा चेहरा दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। Pray for my soul, तो जब तुम मुझे देख नहीं पाओगे तब केवल मेरी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए तुम प्रेयर करोगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत क्षमताएं होती है। More things are wrought by prayer than this world dreams of. तो राजा कहते हैं कि हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है अगर हम प्रेयर करें, परंतु अगर हम प्रेयर न करें तो बहुत पास रखी हुई चीजें भी हमें हासिल नहीं होता। तो राजा का कहना है कि मोर थिंग्स आर रॉट बाय, रॉट मतलब हासिल होना, रॉट बाय प्रेयर, बहुत सारी चीजें हमें प्रेयर के कारण ही मिल सकता है। जो कुछ इस धरती पर हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी सारी चीजें हमें प्रेयर करने से हासिल हो सकता है। इसीलिए प्रेयर में, प्रार्थना में बहुत शक्ति है और तुम केवल मेरे लिए प्रेयर करना। Therefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. तो कहते हैं कि आपके जो प्रार्थना की आवाज है वो मेरे कानों में दिन रात गूंजेंगे। Whereof let thy voice, तुम कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, तुम अगर मेरे लिए प्रार्थना करते हो तो वो आवाज, वो प्रेयर की ध्वनि मुझ तक जरूर आएगी। राइज लाइक अ फाउंटेन, ये फव्वारे की तरह उछलने लगेगा और जहां भी मैं रहूंगा दिन रात मेरे कानों में वो प्रार्थना की ध्वनि सुनाई पड़ते रहेगी। For what are men better than sheep and goat? वो कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हमें दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना है, अपने भलाई के लिए भी सोचना है। वो कहते हैं जैसे भेड़ बकरी केवल अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, केवल अपने भोजन के बारे में सोचते हैं, जहां भोजन मिलता है वहीं दौड़ पड़ते हैं और अपना पेट भरते हैं और दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते।
पर हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने वाली दिमाग है। इस दिमाग से हम दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए और हमें केवल भेड़ बकरी की तरह केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। That nourish a blind life within the brain। तो कहते हैं भेड़ बकरी केवल अपना पेट भरने के लिए ही जीते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता सोचने के लिए, इसीलिए वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अपना ही पेट भरने के लिए वो हर जगह दौड़ पड़ते हैं जहां भी उन्हें खाने की चीजें मिल जाती हैं। If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends। तो यहाँ पर किंग आर्थर कहते हैं बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो जानते हैं कि भगवान है, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनसे हमारे लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए, केवल हमारे लिए ही नहीं तो हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी हमें भगवान से प्रार्थना करके उन्हें उनसे कुछ मांगना चाहिए। पर वे नहीं मांगते हैं, वो केवल अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। सो आपने एक हिंदी में एक कविता सुनी होगी, उसमें एक लाइन है जो इस लाइन के साथ मैच करता है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो पशुओं की क्या प्रवृत्ति होती है, क्या सोच होता है, वे खुद ही चरते हैं, किसी और के लिए सोचते नहीं है। तो किंग आर्थर यहाँ कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए भी प्रेयर करना चाहिए और उनकी भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। Both of themselves and those who call them friend, मतलब अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भी, जिन्हें हम अपना दोस्त कहते हैं, उनके लिए भी तो हमें कुछ सोचना चाहिए। For so the world around earth is everywhere bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। तो राजा कहते हैं इस समय मुझे आप विदा दीजिए, मैं जा रहा हूं किसी दूर प्रदेश में जहां मैं अकेला जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। परंतु वो कहते हैं कि हम हमेशा भगवान से बंधे रहेंगे। थ्रू किस चीज से? थ्रू द प्रेयर। वी आर बाउंड विद गॉड थ्रू अ गोल्ड चेन। और ये गोल्ड चेन क्या है? प्रेयर है, प्रार्थना है, जिसे गोल्ड चेन कह रहे हैं, वो प्रार्थना है। तब तक के लिए मैं तुमसे विदा लेता हूं, he says farewell, मैं विदा लेता हूं। तो I think you have understood the theme of this poem, that is Lord Alfred Tennyson is asking us to pray to God, क्योंकि प्रेयर से ही हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रेयर। इस कविता को आप बारंबार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में इसे अमल में लाइए। आपको सब कुछ हासिल होगा, खुशियां हासिल होगी। हर कठिन परिस्थिति में भी आप उस कठिनाई से निकल पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।